کیا آپ جانتے ہیں کہ طاقتور ترین بندہ کون سا ہوتا ہے؟ مضبوط ترین آدمی یہ وہ ہے جو خاموش بیٹھا ہے، بول نہیں رہا، لیکن اس خاموشی میں اس کا اپنی سوچوں پہ کنٹرول ہے، وہ ایک خاص رستے پہ چل رہا ہے، بھول میں نہیں ہے، کسی خاص مسئلے پر سوچ رہا ہے، کسی ایشو کو اپنے دماغ میں سلجھا رہا ہے، اور جب خاموشی ٹوٹے گی وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، اب وہ کچھ طے کر چکا ہوگا، something has been decided۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہے جو چپ بیٹھا ہے لیکن اس کے دماغ میں طوفان ہے، بے ربط سوچیں ہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، دماغ میں دھند سی چھائی ہوئی ہے، اور ماضی کی سزائیں وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف بے یقین مستقبل اس کو ڈرا رہا ہے۔ اور جس طرح یہ صفحے اس کتاب کے پلٹے جا رہے ہیں، اس طرح اس کے ذہن کے اندر سوچے جا رہی ہیں، 5 سیکنڈ بھی وہ کسی ایک بات پہ نہیں سوچتا، پھر شفل کر دیتا ہے، پھر نئی بات اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اینڈ مائنڈ یو، نفسیاتی امراض کی سب سے بڑی وجہ اسی طرح سوچوں کو بدلتے رہنا اور ماضی کو پکاتے رہنا۔ تو آج سبحان تاری پوڈ کاسٹ میں یہی موضوع ہے، اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا، الجھی ہوئی سوچیں، بکھرا ہوا دماغ۔ The problem is actually not the problem. Problem is the incredible amount of overthinking you are doing with the problem. مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس کو پکا پکا کے آپ نے اتنا بڑا مسئلہ کر دیا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو تکلیف کے آنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہیں، ہلکان ہوتے جا رہے ہیں، تو در حقیقت آپ نے اس تکلیف کو 2 مرتبہ سہا ہے۔ You suffered that pain twice۔ ایک تو جب وہ تکلیف آئے گی تب آپ سہیں گے، اور ایک ابھی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو آپ نے پریشان کر لیا۔ طوفان تو آنے ہیں بھائی، مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں، زندگی ہے، دنیا ہے۔ اور یہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں نا، کسی بڑے بوڑھے سے پوچھے جا کے جو آپ کے ارد گرد جن کے بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں آ گئی، ان سے پوچھے، یہ خوشی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو سستانے کے لیے چھوٹا سا ایک وقفہ ہے بس۔ ہر زندگی تو جہد مسلسل کا نام ہے جناب، ہر وقت نیا چیلنج، آج کوئی فوت کی ہوگی، کل امتحان میں فیل ہو گئے، دکان میں مسئلہ ہو گیا، فائنینشیل لاس ہو گیا۔ دس لائف از اے جرنی فل آف چیلنجز۔ اور پھر بظاہر خوشی میں دیکھیں، شادی ہے، خوشی کا لمحہ ہے نا، اب شادی کے دن سب سے پریشان کون ہوتا ہے؟ لڑکی کا باپ۔ کیوں؟ آج اگر ایک پلیٹ کھانا بھی کم ہو گیا نا تو میری خیر نہیں ہے۔ تو لائف از اے اسٹرگل، آپ نے زیادہ سوچنا نہیں ہے۔ تو اگر آپ آتے ہوئے طوفان کے انتظار میں ساری زندگی گزار دیں گے، آیا نہیں ہے، انتظار میں، تو پھر یہ ابھی جو سورج کی اتنی پیاری روشنی ہے آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، اور ابھی جو اتنے پیارے بادل آئے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ اوور تھنکنگ میں کہ جی کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ کے آپ کا دماغ گھومتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ طوفان ایک ہی ہے، سب کی کشتیاں مختلف ہیں، طوفان ایک ہی ہوتا ہے، کشتیاں مختلف ہیں، کسی کی چھوٹی سی کشتی ہے، کسی کی موٹر بوٹ ہے، کسی کی بڑی کشتی ہے، طوفان ایک جیسے ہیں، ہر ایک کے اندر حوصلہ، صلاحیت یہ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ تکلیف چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ 10 فٹ پانی میں ڈوب کے مرا، ایک بندہ 70 فٹ پانی میں ڈوب کے مرا، مرے تو دونوں ہے نا۔ تو کبھی یہ نہ کہا کرے یار اس کی تکلیف کم ہے، میری زیادہ ہے، یا میری کم ہے، جس پر آئی ہوئی ہے اس کو دیکھے، اس کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ اور ایک اہم ترین بات یاد رکھے، آپ اور آپ کا دماغ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 الگ الگ آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ آپ کا ہی دماغ ہے، آپ کے جسم میں موجود ہے، لیکن دس از اے سیپریٹ آئیڈینٹی۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی بات کو سوچنا نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن بار بار وہی بات آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے؟ ایسا ہے نا؟ تو اس کا مطلب دماغ کوئی اور چیز ہے جو اپنی مرضی کی باتیں بھیج رہا ہے۔ چلیں تھوڑی دیر چپ کریں، بالکل خاموش، اور اپنے آپ سے پوچھے تمہارا نام کیا ہے؟ پوچھے، جواب آیا نا؟ اب پوچھے تمہارا کیا حال ہے؟ پھر جواب آیا، اب کوئی بڑی اچھی بات اپنے آپ سے کرے، اچھا جواب آئے گا۔ اب کوئی بری سی بات کرے، برا جواب آئے گا۔ یہ کون دے رہا جواب؟ یہ آپ کا دماغ ہے سر، دس از یور کانشیس مائنڈ۔ تو اس دنیا میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے دماغ پر حاکم ہے، دماغ اس کا غلام ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دماغ کے غلام بن گئے، دماغ ان کا حاکم بن گیا، دماغ انہیں جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں،
दिमाग कहता है ये मुंह से निकालो, वो मुंह से वही बात निकालते हैं, अपनी कोई सोचते नहीं है, बस जहां चल रहा होता है सारा कुछ वहां चलते चले जाते हैं। तो दिमाग एक पिंग पोंग के गेंद की तरह, अगर आप ऐसे फेंके पिंग पोंग का गेंद घूमता रहेगा ना, उस तरह आपको घुमा के रख देगा, आप किसी तरफ सेटल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने दिमाग के ऊपर एक गेट कीपर की तरह बैठना है और अपनी मर्जी की चीजें अंदर जाने देनी है, ये नहीं कि दिमाग में सब कुछ घुसता चला जाए। एंड नाउ ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन दिस वर्ल्ड। इंसानी दिमाग दुनिया की पेचीदा तरीन मशीन है जनाब, और ये कभी बंद नहीं होता, ये ऑफ नहीं होता। जब रात को आप सो जाते हैं, आप क्या समझते हैं, जिस तरह रात को आपने गाड़ी गिराज में खड़ी की और गाड़ी गिराज में खड़ी करके आप आ गए, सुबह जाएंगे गाड़ी उसी तरह आपको मिलेगी, सारी रात खड़ी रही, कोई तब्दीली तो नहीं ना उसमें आएगी। क्या दिमाग भी ऐसा ही है कि रात को जब आप सो गए दिमाग को छोड़ के तो सुबह उठेंगे वही होगा? ओ जनाब नहीं, सारी रात बड़े पेचीदा काम करता रहा दिमाग। आप सोए, दिमाग एक नए अंदाज से जाग उठा। तो रात को जब भी सोया करे ना, अपने दिमाग को कोई जॉब, कोई बात देकर सोया करे ताकि सुबह तक वो काम करता रहे। देखिए ये जिंदगी है, और यहाँ एक शिकारी है, उसका नाम है मौत, और आप शिकार है, किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। तो जनाब ये बोर होना, ये बहाने बनाना और ये सुस्त बन के पड़े रहना, ये छोड़ दीजिए। फैसला करें, जल्दी फैसला करके उस पर अमल करना शुरू करें। और वसवसों से बचा नहीं जाता ना, ओवर थिंकिंग का मेन इशू वसवसे हैं, ये जो आते रहते हैं। देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ 15,000 kVA की तार जा रही है, बिजली की करंट जा रहा है उसमें, मैं यहाँ बैठा हूँ, तार वहां जा रही है, करंट गुजरता जा रहा है, मुझे क्या। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ के उसे पकड़ लूंगा, जिस्म पानी हो जाएगा, उड़ जाऊंगा। यही हाल वसवसों का है। आप बैठे हैं, वसवसे तो आएंगे, आते जाएंगे, आपने तवज्जो नहीं देनी। You should not pay attention on these false sort of items. कंसंट्रेट करें, अटेंटिव रहें अपने काम की तरफ। और अब अहम तरीन बात सुनिए, अपने दिमाग में एक शट डाउन बटन लेकर आए। शट डाउन ब्रेकर, देखा कभी बिजली का ब्रेकर, नीचे करते ऊपर करते, इस तरह का ब्रेकर अपने दिमाग में लगाएं। अभी कोशिश करें, चलें ये पूरा सेटअप बनाए जनाब, दिमाग में ब्रेकर लगने लगा। कहां से खरीदेंगे? ये दिमाग के अंदर से ही मिलता है, अंदर ही इसकी दुकान है, अंदर से तस्वुर में लेकर आए। आप ब्रेकर अपने दिमाग में लगा रहे हैं, और अब वो ब्रेकर आपने स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है। जब आप सोने लगेंगे आपने उसको स्विच ऑफ कर देना है। अब कोई और सोच और नहीं आएगी, बस पूरे दिमाग के अंदर अपना तस्वुर बांधना है, स्लीप स्लीप स्लीप, नींद आ गई, मुझे नींद आ गई, ये आपने अपने दिमाग के सामने लेकर आना है। आपकी बटन स्विच ऑफ हो गया है, बार बार अपने आप को कहें, ट्रेनिंग करें, ये मुमकिन है। दुनिया में वो लोग जिन्होंने कुछ करना होता है वो ओवर थिंकर्स नहीं होते, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ काम की बात सोचते हैं। रात को ये सोचे कि मेरा ये गाल जो है सुन हो रहा है, इसको बिल्कुल खत्म हो रहा है, ये सो रहा है, फिर बायां गाल सुन हो रहा है, फिर सर, एक उज़्व अपना एक ऑर्गन, उस पर आहिस्ता आहिस्ता नींद तारी करे। शट डाउन बटन, ये बड़ा जरूरी है, शट डाउन। और इसी तरह जब आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अब फिर ये शट डाउन बटन आपने बंद कर देना है कि अब कोई और सोचे आपको ना आए, और अब आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। और देखिए ये यकसुई हासिल करने के लिए, एक जगह फोकस करने के लिए, ये इबादत कितनी बड़ी नेमत है। नमाज के अंदर सबसे पहले आप अल्लाह अकबर कहते हैं, आपका रिलेशन, आपका ताल्लुक बाहर की दुनिया से कट गया। फिर एक खास हालत में, कभी खड़े होकर कभी रुकू में, ये मेडिटेशन के लिए बड़ा जरूरी है कि आपकी हालत क्या है, आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है। जब आप खड़े हैं क़याम में, आपकी नजरें सिजदे की तरफ है, आप रुकू में गए, आपकी नजरें नाखून की तरफ है, आप अत्ताहियात बैठे, आपकी नजरें झोली की तरफ है। कैसे तवज्जो को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बेहतरीन मैकेनिज्म है। रोजे को देखें, रोजादार ने नेमतें छोड़ दी, क्यों छोड़ी? अपने अल्लाह के कहने पे। अब उसका फोकस क्या है, किस तरफ उसका फोकस सेट हुआ है। हज के मौके पर हमें एक डॉक्टर साहब, जिनका टाइम हफ्तों का नहीं मिलता था, वो कहते जी वहां जाके तो एक ही तरह के सबने कपड़े पहने, 2 चादरें, और यही फोकस है कि जो अब हज के अरकान है उसको कंप्लीट किया जाए। आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, बस यही फिक्र लगी हुई है, तो हमारा फोकस सेट हो जाता है। तो ये बात तय हो गई जनाब कि जो ओवर थिंकर हैं, जिनकी सोचें बेरब्त रहती हैं, जिनका दिमाग घूमता रहता है, कभी सीधा नहीं हो पाता, जो मैं कहते हैं जी हमारे सोचें बड़े तंग करती हैं, तो वो इन इबादात में दिल लगाएं, इन इबादात की हैबिट बनाएं, और जो ठीक है वो जरूर करें, इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो भी ओवर थिंकर बन जाएं, उनका फोकस सेट रहना चाहिए। सो ओवर थिंकिंग इज ए मेंटल ट्रैप। ओवर थिंकिंग दर हकीकत आपके दिमाग का बना हुआ जाल है जो कि आपको खुशियों से महरूम कर रहा है। इट्स रॉब
रॉबिंग योर हैप्पीनेस। कभी भी इस जाल में आपने फंसना नहीं है, बल्कि आपने पॉजिटिव रहना है। सबसे पहला क्या काम आप कर सकते हैं, आप अच्छे अल्फाज अपने मुंह से दोहराएं, जस्ट अटर गुड वर्ड्स, आगे से आगे अच्छे अल्फाज दोहराएं। रिमेंबर, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। आपके जिस्म की एनर्जी उसी तरफ जाएगी जहां आपकी तवज्जो जा रही है। कुछ ऐसे लफ्ज चुन लें जिन्हें आप अपनी ज़बान से दोहराते रहेंगे। ये देखिए, अल्लाह रहमान और रहीम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है, मेरी वालिदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मदीना शरीफ, कुरान मजीद दिलों का सुकून है, नमाज दीन का सतून है। इस तरह के अल्फाज अपने आप से दोहराएं और फिर किसी ऐसे के पास जाएं जिससे आप बेगर्ज की मोहब्बत करते हैं, जिसमें कोई छोटा बच्चा है, आपका बेबी है, उसके पास जाएं, उसके साथ मिलें, उसको गले लगाएं। इससे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं इंसान के दिमाग से जो कि उसको फ्रेश कर देते हैं। और फिर ये याद रखें कि सोचों की जुगाली न करें, डू नॉट र्यूमिनेट द थॉट्स। जिस तरह एक गाय खाना खाती है, जुगाली करती है, जुगाली करती है, जुगाली करती है, उसी चीज को घुमाती जाती है। नहीं, माजी को छोड़ दें, माजी को छोड़ दें। माजी से कोई नई बात आपको नहीं मिलनी, वही पुरानी बातें हैं। अगर आप माजी को सख्ती के साथ पकड़ के रखेंगे, उतना मुस्तकबिल आपसे फिसलता जाएगा। अगर आपको माजी से कोई कॉल आ रही है, ना अटेंड करें, उसके पास कोई नई बात सुनाने के लिए नहीं है। माजी रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, सारा कुछ देखा वाला है, और सारी तवज्जो, सारी ताकत आपकी आगे की तरफ लगनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़नी है। ये देखिए, सामने आपको दो दरवाजे नजर आ रहे हैं, एक माजी का दरवाजा, एक मुस्तकबिल का दरवाजा। उठें, गहरा सांस लें, माजी के दरवाजे को बंद करें, मुस्तकबिल के दरवाजे को खोलें और उसमें दाखिल हो जाएं। माजी की हैसियत एक रेफरेंस बुक की तरह होनी चाहिए कि जब आपको कोई मसला दरपेश हुआ, आप उस रेफरेंस बुक को उठाएं, एक दफा देख लें, रहनुमाई लें और फिर बंद कर दें, उसको खोल के ना रखें। माजी की बातों में अपने आप को सजा देना छोड़ दें। हो गई गलती, हो गया फेल, वो फेल था, कोई उम्र कैद तो नहीं थी कि उसको भी याद रख के सारी जिंदगी आपने उसके पीछे गुजारनी है, ऐसा तो नहीं था ना भाई। तो एक छोटे बच्चे की तरह जिसके पास अभी इतना माजी गुजरा ही नहीं है, तो माजी की कोई याद नहीं है उसकी, और मुस्तकबिल के बारे में उसको फिक्र नहीं है। छोटा बच्चा हमेशा हाल में जीता है। अगर आपको डिप्रेशन है, इसका मतलब आप माजी में जी रहे हैं। अगर आप ओवर एक्साइटेड है, इसका मतलब आप मुस्तकबिल में जी रहे हैं। अगर आप सुकून में है, इसका मतलब आप हकीकत में, आज में, लाइव प्रेजेंट में जी रहे हैं। और एक और तरीका ओवर थिंकिंग से बचने का बड़ा जबरदस्त है, और वो ये कि आप किसी के साथ नेकी करें, किसी के साथ हमदर्दी करें। जब आप ये काम करते हैं ना, तो आपके पूरे जिस्म पे शुक्र का खौल छा जाता है और आपको बहुत हिफाजत रहती है। तो लास्ट में ये मैं अर्ज करता चलूं कि फौरी रद्द अमल एक कमजोर रद्द अमल है। इमीडिएट रिस्पॉन्स इज ए वीक रिस्पॉन्स, रादर द वीकेस्ट रिस्पॉन्स। जब कोई आके आप पे गुस्सा निकाले, आपकी इंसल्ट कर दे और आप भी आगे से बिफर जाएं, तो समझ लीजिए कि ये काम खराब हो गया। आप पानी की बोतल बने, सोडे की बोतल ना बने। इसका क्या मतलब है कि पानी की बोतल को जितना मर्जी हिलाया जाए, जब आप खोलते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सोडे की बोतल को हिलाते हैं ना, एकदम से तूफान निकलता है। तो आपको भी अगर आप कोई आके हिलाए, अपनी बातों से सताए, तो ये ना हो कि सोडे की बोतल की तरह आप भी फट पड़े, बल्कि पानी की बोतल की तरह आप में कोई तूफान ना आए। फौरी रद्द अमल एक कमजोर रद्द अमल है। हमेशा बात को सोच कर फिर रद्द अमल करें। सो रिमेंबर, योर बेस्ट वर्जन इज वेटिंग फॉर यू। आपका ज्यादा सोचना और सोच के अपने आप को हलकान कर लेना आपकी बेहतरी की, आपकी डेवलपमेंट की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। एक वक्त में आप एक ही बात सोच सकते हैं, अच्छी बात सोचें, तरक्की के बारे में सोचे, बढ़ने के बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। सुभान तारी पॉडकास्ट हर बुध को आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सुभान तारी शॉर्ट्स भी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी हो।